Good morning, students. Today we will start with the DMA controller, which is Intel 8257. So before going into the details about the block diagram and the ping diagram of DMA controller, we need to know what is the purpose of a DMA controller, right? So now, as we all know that whenever we are working on a system, we have three main things. One is the peripheral, second is memory, and the third one is the CPU, right? And the basic mode of whenever we are transferring some data, the basic mode of transferring the data is whenever the peripherals have to transfer, make some write some data, or they have to read some data from the memory, they need to contact the CPU for that, right? Because this is the main memory, right? Main purpose, main processing unit is our CPU, which is holding the system buses. The system buses means the address bus, the data bus, and the control bus. It is under the CPU. So whenever peripherals have to write some data into the memory, or they have to read some data from the memory, they need to contact CPU, right? So whenever we are transferring the peripherals, they are contacting the CPU for that, right? And then CPU will write the data. If they are writing some data, it will send it to the CPU, and then CPU will send it back to the memory, right? So there is a lot of time consumption in this process, right? To make this sending of data, reading of data, writing of data faster, to make it faster, we have a DMA over here. So what is this DMA? Is direct memory access. Direct memory access means the peripherals can directly access the memory without the intervention of CPU, right? So in this case, to control this process, to control the transfer between the peripherals and the memory, we have a DMA controller. We have a DMA controller over here, right? So here I am explaining it. So now suppose we have peripherals here, we have the memory here, we have a DMA controller, and here is the CPU, right? Now how this process goes on, right? This is I'm explaining over here. Now we have the three main components here: the peripherals, the memory, and the CPU. And now we have a fourth component, which is a DMA controller, right? So now whenever we need to exclude CPU to make the what we want is we want to exclude CPU to make our transfers faster, right? We need to exclude CPU. In that case, we need a DMA controller. ठीक है, DMA कंट्रोलर क्या करेगा? ये पेरिफेरल्स और मेमोरी के बीच में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवाएगा ऑफ डेटा. रीड एंड राइट ऑपरेशंस डायरेक्ट होंगे CPU को एक्सक्लूड करके. ठीक है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम एक DMA कंट्रोलर यूज़ करते हैं. ठीक है, अब होगा क्या? पेरिफेरल्स जो हैं वो क्या करेंगे? DMA कंट्रोलर को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं DRQ. ये एक रिक्वेस्ट भेजेंगे टू द DMA कंट्रोलर. ठीक है, अब ये DMA कंट्रोलर क्या करेगा? इसने क्योंकि पेरिफेरल्स हैं, दे वांट टू ट्रांसफ़र सम डेटा. ठीक है, तो उन्होंने क्या करना है? दे विल कंटेक्ट. अगर वो डायरेक्ट भेजना चाह रहे हैं डेटा, तो वो क्या करेंगे? DMA कंट्रोलर को एक रिक्वेस्ट भेज देंगे. एंड ये DMA कंट्रोलर जो है फर्दर CPU को एक रिक्वेस्ट भेजेगा टू टेक द होल्ड ऑफ द सिस्टम बसेस. कौन कौन सी सिस्टम बसेस? द कंट्रोल बस, द डेटा बस, एंड द एड्रेस बस. ताकि वो क्या करे कि ये जो बसेस का होल्ड है आप मुझे दे दो, और मैं डायरेक्टली ये डेटा ट्रांसफ़र जो है वो कर सकूँ. ठीक है, तो उसने क्या करना है? CPU को एक रिक्वेस्ट भेजनी है, जिसे हम कहते हैं HRQ. ठीक है, उसने एक रिक्वेस्ट सेंड की, जिसे हम नेम देते हैं HRQ. अब सिस्टम जो हमारा CPU है, इसने क्या करना है? ठीक है, अगर इसने अब सिस्टम बसेस इसने छोड़ के इसने इसे किसे दे दी? इसने हैंड ओवर कर दी
टू द DMA कंट्रोलर। अगर इसने हैंड ओवर करनी है तो ये इसे एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेज देगा कि ओके, अब मैं जितनी भी मेरी जो सिस्टम बसेस थी वो मैंने हैंड ओवर कर दी हैं। किसे कर दी है हैंड ओवर? मैंने DMA कंट्रोलर को हैंड ओवर कर दी है। ठीक है, अब इस केस में जो हमारा CPU जो कि पहले मास्टर था, ठीक है, क्योंकि द CPU वॉज होल्डिंग ऑल द सिस्टम बसेस और सारा डेटा ट्रांसफ़र किसके थ्रू हो रहा था? CPU के थ्रू हो रहा था। ठीक है, अब इसने अपनी जो पावर है वो किसे दे दी है? DMA कंट्रोलर को दे दी। इसने सिस्टम बसेस किसे हैंड ओवर कर दी हैं? DMA कंट्रोलर को। अब यहाँ पे हमारा मास्टर कौन बन गया है? हमारा DMA कंट्रोलर बन गया, और जो CPU है अब वो क्या बन गया है? एक स्लेव। ठीक है, अब यहाँ पे मास्टर और स्लेव कहने का मतलब ये है कि ये जो DMA कंट्रोलर है ये 2 मोड्स में ऑपरेट करता है। ठीक है, जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ये 2 मोड्स में ऑपरेट करता है और वो 2 मोड्स होते हैं मास्टर एंड स्लेव मोड। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार जो CPU पहले मास्टर एज अ मास्टर बिहेव कर रहा था, मास्टर मोड में काम कर रहा था, जब DMA कंट्रोलर ने उसकी बसेस को हैंड ओवर कर लिया, ठीक है, उसने उसको इन होल्ड ले ली उसकी बसेस, तो हमारा CPU है इट इज़ एक्टिंग इन अ स्लेव मोड। ठीक है, तो अब इसने HLDA सिग्नल भेज दिया था CPU ने कि ओके नाउ यू कैन टेक ओवर द बसेस। तो जो DMA है वो डायरेक्टली अब क्या करेगा? इसके हाथ में कंट्रोल आ गया। अब ये जो ट्रांसफ़र है वो डायरेक्ट होगा बिटवीन द पेरिफेरल्स एंड द मेमोरी। ठीक है, कब तक? जब तक ये पूरा डेटा ट्रांसफ़र हो नहीं जाता। उसके बाद इसने DMA कंट्रोलर ने जो सिस्टम बसेस हैं वो हैंड ओवर बैक कर देनी है टू द CPU। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ DMA कंट्रोलर। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे आर्किटेक्चर पे। ठीक है, कि 8257 का आर्किटेक्चर किस तरह होता है और इसमें कौन कौन से पिन्स होते हैं, कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे पास 8257 में वी हैव इन टोटल 4 चैनल्स। ठीक है, 4 चैनल्स कहने का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास एक टाइम पे 4 पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे हम यूजिंग द DMA कंट्रोलर 8257 हम 4 चैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, okay, so now 4 channels. The first is CH0, CH1, CH2 and CH3. We have 4 channels. ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे 4 पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और ये 4 पेरिफेरल डिवाइसेस एज आई टोल्ड यू दे सेंड द रिक्वेस्ट DRQ। ठीक है, ये DRQ रिक्वेस्ट किसे सेंड करते हैं? टू द DMA कंट्रोलर। तो ये DRQ रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, DRQ नॉट, DRQ1, DRQ2, DRQ3। ये कैटेगराइज करने के लिए कि कौन सा पेरिफेरल डिवाइस रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसके लिए हमने अलग अलग सिग्नल्स दिए हुए हैं। DRQ0 मतलब कि हमारा जो इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, दिस डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड टू DRQ0 इट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। मतलब जब CPU के DMA कंट्रोलर के पास कोई रिक्वेस्ट जानी है, तो अगर रिक्वेस्ट DRQ नॉट की तरफ से गई है और DRQ2 की तरफ से गई है, तो पहले कौन सी सॉल्व होगी? DRQ नॉट सॉल्व होगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी और इसकी हमारी लोवेस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, सो इट इज़ सेंडिंग अ रिक्वेस्ट DRQ नॉट। ठीक है, और जब उसे कंट्रोल मिल गया, DMA कंट्रोलर को कंट्रोल मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था DRQ जब रिक्वेस्ट भेजी तो उसने यहाँ पे उसे भेज देना है वापस जो एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, सो इट विल सेंड इट द एक्नॉलेजमेंट DACK। ठीक है, तो उसने वापस से उसे एक रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर DMA कंट्रोलर के पास कंट्रोल आ गया था तो इसने वापस उसे भेज दिया सिग्नल DACK। ठीक है, तो ये जो 2 रिक्वेस्ट हैं ये हमारी यहाँ पे जा रही हैं, DRQ एंड DACK। ठीक है, अब इसके बाद अब ये जब रिक्वेस्ट चली गई हमारी,
ठीक है, DRQ और ये सॉरी DRQ रिक्वेस्ट चली गई, अब DMA कंट्रोल को कंट्रोल मिल गया तो उसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। ठीक है, इन दिस वे ऑल दीज 4 चैनल्स आर गिवन द रिक्वेस्ट एंड टेकन बैक द एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी रिजॉल्वर लगा हुआ है। प्रायोरिटी रिजॉल्वर जैसे मैंने कहा कि अगर 2 रिक्वेस्ट जा रही हैं, एक जा रही है 0 की तरफ से और दूसरी जा रही है 2 की तरफ से, तो उसने किसे प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो वो प्रायोरिटी रिजॉल्वर सॉल्व करेगा कि पहले उसने नॉट वाले की प्रायोरिटी को सॉल्व करना है। इट विल टेक द ऑल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द DRQ 0 फर्स्ट। ठीक है, जिस ये वाला जो है चैनल 0 इस पे जो जाएगी पहले उसे सॉल्व करेगा और फिर उसके बाद 2 को सॉल्व करेगा। और इसी के साथ हर एक जो चैनल है इट हैज़ अ 16 बिट एड्रेस एंड अ 14 बिट कंट्रोल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एज इट इज़ याद रखनी है। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से, अब इसके अलावा हमारे पास 3 कंट्रोल और हैं इस साइड पे। यू कैन सी हियर द डेटा बस बफर, द रीड राइट लॉजिक एंड द कंट्रोल लॉजिक एंड द मोड सेट रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे द फर्स्ट थिंग ओवर हेयर इज द D0 to D7 पिन्स। अब D0 to D7 हमारे हैं 8 बिट डेटा बस। ठीक है, जो हमारी 8 बिट डेटा बस है जिसके थ्रू हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, इट विल बी ट्रांसफर थ्रू द D0 to D7 8 बिट डेटा बस। इसके बाद हमारे पास एक आ जाता है रीड राइट लॉजिक। रीड राइट लॉजिक में हमारा फर्स्ट पिन है इनपुट आउटपुट रीड। ठीक है, अब ये जो हमारा सिग्नल है ये बेसिकली यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड बाय द CPU टू रीड द इंटरनल रजिस्टर ऑफ 8257। ठीक है, जो हमारे 8257 के इंटरनल रजिस्टर्स हैं उन्हें रीड करने के लिए हमारा जो CPU है वो इंस्ट्रक्शन यूज़ करता है इनपुट आउटपुट रीड, जब वो स्लेव मोड में होता है। ठीक है, जब वो स्लेव मोड में, हमारा CPU जब स्लेव मोड में है उस टाइम पे जो भी इंटरनल रजिस्टर्स हैं हमारे 8257 के, उन्हें रीड करने के लिए इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल यूज़ होगा। ठीक है, और जब वो मास्टर मोड में होगा इट विल बी यूज टू रीड द पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, ड्यूरिंग द मेमोरी राइट साइकिल, तब वो पेरिफेरल डिवाइसेस को रीड करने के लिए यूज़ करेगा जब वो मास्टर मोड में होगा। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा इनपुट आउटपुट राइट है इट इज़ यूज टू लोड द कंटेंट ऑफ डेटा बस टू 8 बिट मोड रजिस्टर। ठीक है, लोड करने के लिए यूज़ होगा, राइट करने के लिए यूज़ होगा हमारा जो भी कंटेंट है। ठीक है, और मास्टर मोड में इट इज़ यूज टू लोड द डेटा टू द पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो स्लेव मोड में हमारा 8 बिट मोड रजिस्टर, ठीक है, लोड करने के लिए होगा ऑफ द DMA कंट्रोलर एंड अदरवाइज इट विल बी यूज टू लोड द डेटा टू द पेरिफेरल्स ड्यूरिंग द DMA राइट साइकिल। ठीक है जी, इसके बाद जो हमारा क्लॉक सिग्नल है कुछ नहीं, सिंपल क्लॉक सिग्नल हमारा यूज़ होता है एज वी ऑल नो। ये क्लॉक साइकिल हमारा मूव करता है। ठीक है, कि एक क्लॉक साइकिल में कितना डेटा रीड होना है कितना राइट होना, उसे हमारा कंट्रोल कौन कर रहा है, क्लॉक सिग्नल। इसके बाद आ गया हमारा रीसेट। ठीक है, रीसेट हमारा यूज़ होता है सिंपली टू रीसेट ऑल द डेटा लाइंस, कि हमारी जितनी भी डेटा लाइंस हैं या एड्रेस लाइंस हैं उन्हें रीसेट करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है रीसेट सिग्नल, कि उन्हें दोबारा से रीसेट करना, बिल्कुल एम्प्टी करके दोबारा से रीसेट कर दो उन्हें। इसके बाद हमारी जो A0 to A3 लाइंस हैं ये यूज़ होती हैं हमारी एड्रेस लाइंस। ठीक है, एड्रेस लाइंस टू जो भी हमारा एड्रेस हमने सेंड करना है, जहाँ पे भी डेटा को रीड करना, जहाँ से रीड करना है या जहाँ पे राइट करना है, उसकी जो लोअर 4 बिट्स हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, A0 to A3। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है चिप सेलेक्ट CS। जो चिप सेलेक्ट है ये हमारा यूज़ होता है मास्टर मोड में, इट इज़ यूज टू डिसेबल द रीड राइट ऑपरेशन। ठीक है, और स्लेव मोड में टू इनेबल द रीड राइट ऑपरेशन सिंपली। ठीक है, जब भी इसे हम मास्टर मोड में ऑपरेट कर रहे हैं तो हम डिसेबल करेंगे रीड राइट ऑपरेशन को। मास्टर मोड मीन्स एज आई टोल्ड यू मास्टर एंड स्लो 2 मोड्स होंगे हमारे। CPU एज अ मास्टर मोड एक्ट कर रहा है या स्लेव मोड एक्ट कर रहा है। अगर मास्टर मोड में है तो रीड राइट ऑपरेशन डिसेबल हो जाएगा, स्लेव मोड में है तो वाइस वर्सा।
ओके इसके बाद आ गए हमारे A4 to A7 चिप्स। ये हमारे एड्रेस लाइंस हैं, अपर हायर 4 एड्रेस बसेस हैं, ठीक है, जिन पे हायर 4 बिट्स का एड्रेस जाएगा। इसके बाद आ गया हमारा रेडी सिग्नल टू जस्ट टेल कि हमारा जो कंट्रोल हमारा 8257 इट इज़ इन रेडी स्टेट और नॉट, ठीक है। इसके बाद आ गया HRQ एंड HLDA। नाउ एज आई टोल्ड यू HRQ, अब यहीं पे जाते हैं एक बार HRQ और HLDA आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब HRQ हम सिग्नल कहाँ यूज़ कर रहे थे, जब हमने DMA कंट्रोलर को रिक्वेस्ट आई थी, कोई DMA कंट्रोलर ने आगे CPU को रिक्वेस्ट करनी थी, ठीक है, कि मुझे सिस्टम बसेस का कंट्रोल दे दो। तब उसने HRQ रिक्वेस्ट भेजी थी, और अगर सिस्टम बस CPU ने उसे सारी बसेस का कंट्रोल दे दिया, इट हैज़ सेंट इट अ HLDA सिग्नल, ठीक है। सिमिलर ओवर है। अब यहाँ पे तो उसने HRQ रिक्वेस्ट पे, यहाँ पे HRQ सिग्नल इज टेलिंग कि जो हमारा HRQ इज रिसीविंग द होल्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम अ DMA कंट्रोलर, एंड HLDA इज यूज टू जब हमने सेंट, इट इज सेंट बाय द CPU टू द DMA कंट्रोलर बाय हैंड ओवरिंग द सिस्टम बसेस, ठीक है। इसके बाद आ गया मेमोरी रीड। मेमोरी रीड इज सिंपली टू रीड द डेटा फ्रॉम द एड्रेस मेमोरी लोकेशन ड्यूरिंग द DMA रीड साइकिल। अगर हम मेमोरी में से कोई भी डेटा रीड कर रहे हैं ड्यूरिंग द DMA रीड साइकिल, विल यूज द MEMR सिग्नल। मेमोरी राइट टू राइट द डेटा फ्रॉम द एड्रेस memory location during the DMA write cycle. Next is AEN. AEN is to disable the address and the data bus, ठीक है। Next is your ADS-TB. This is simply a strobe signal which is used to convert the memory address bus to the latches, ठीक है। It is used to convert the memory address bus to the latches. इसके बाद आ गया हमारा TC. TC is your terminal count. It is used to represent the present DMA cycle. It is used to represent the present DMA cycle, ठीक है, कि हम इस टाइम पे किस पर्टिकुलर DMA साइकिल में काम कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम कौन सा किस DMA साइकिल पे हैं हम, उस चीज़ को कौन बताएगा, हमारा टर्मिनल काउंट। उसके बाद आ गया मार्क। अब यहाँ पे एक सिग्नल होता है मार्क। ये मार्क क्या करता है कि जो हमारा DMA कंट्रोलर है, ठीक है, अब ये हमारा डायरेक्टली डील कर रहा है हमारे पेरिफेरल्स के साथ, राइट। अब जब एक पेरिफेरल मैक्सिमम 128 बाइट्स ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसके बाद ये जो DMA कंट्रोलर है, ये एक सिग्नल सेंड करता है मार्क टू द पेरिफेरल्स टू टेल कि उसने 128 बाइट्स ट्रांसफ़र कर दी हैं, रीड या राइट, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिग्नल यूज़ होता है मार्क सिग्नल, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ 8257। इसके बाद हमारा जो पिन डायग्राम है, जो कि मैंने यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, देखो थ्योरी यहाँ पे दी हुई है, यू कैन रीड द थ्योरी फ्रॉम हेयर। यहाँ पे पिन डायग्राम है इसका, दिस वन, जो मैंने अभी आपको पेन्स बताए हैं इन द आर्किटेक्चर, सेम पेन्स आर ओवर हेयर। D0 to D7 जो हमारी डेटा बस है, CS विच इज़ अ चिप सेलेक्ट जो कि हमारा यूज इन मास्टर मोड यूज फॉर डिसेबलिंग द रीड राइट ऑपरेशन, एंड इन स्लेव मोड द वाइस वर्सा। क्लॉक सिग्नल रीसेट। A0 to A3 the address bus lower 4 bits and the higher 4 bits address buses. Input output read signal, right, which is used by the CPU to read the internal registers of 8257 in slave mode, and in master mode it is used to read the peripheral devices during memory write cycle. Input output write, it is used to load the content of data bus to 8-bit mode registers, and in master mode it is used to load the data to the peripherals during DMA read cycle. Then comes the ready signal
to just tell ki 8257 is ready for the operation or not. Then comes the HRQ signal, which is used to receive the hold request from the DMA controller. HLDA, which is sent by the CPU to the DMA controller by handovering the system buses. MEMR, which is used to read the data from the address memory location during DMA read cycle. And MEMW, which is used to write the data from address memory location during DMA write cycle. देन इज DRQ नॉट. अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट पेरिफेरल डिवाइस, हमारे टोटल 4 पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच हो सकते हैं और उन्हें अलग अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी हैव डिफरेंट रिक्वेस्ट लाइन्स. DRQ नॉट 1, 2 and 3. ठीक है, 4 मैक्सिमम 4 पेरिफेरल डिवाइसेस कैन बी अटैच्ड. तो रिक्वेस्ट इनके थ्रू जाएगी, इन सिग्नल लाइन्स के थ्रू, और एक्नॉलेजमेंट भी अलग अलग रिसीव होगी 1, 2 and 0, 1, 2 and 3. तो टोटल 4 पेरिफेरल डिवाइसेस. देन इज AEN, which is used to it is basically similar as the address latch enable. It is used to disable the address and the data buses. ADSTB, which is used as a strobe signal to convert the memory address bus to the latches. TC, which is the terminal count, which represents the present DMA cycle. And last one is the mark, as I told you that after transferring 128 bytes, the DMA controller will send a signal to the peripherals that it has already sent, it has completed one cycle. So one cycle is of 128 byte transfer. ठीक है, चाहे 128 byte read हो रही है चाहे write हो रही है. तो after 128 byte it will send a mark signal to the peripheral devices. ठीक है, तो इनके बारे में सारी जो डिटेल्स हैं देखो यहाँ पे दी हुई हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो. उसका एक ब्रीफ मैंने आपको दे दिया. ठीक है, so this is all about the 8257. in next lecture I will let you know about the timer. ठीक है, नेक्स्ट में हम नहीं टाइमर नहीं, हम पहले ये करेंगे इंटरप्ट कंट्रोलर कंप्लीट करेंगे 8 to 5 में. ठीक है, ओके, थैंक यू.